آج کی نوجوان نسل ڈپریشن کا شکار ہے اور دیکھتے ہیں سیڈ سٹیٹس، سیڈ پوئٹری بڑا لگا ہوا ہے، تو موڈ کیسے ٹھیک رکھا جائے، خوش کیسے رہا جائے؟ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، رسپونڈ کرنا ہے. جو سکھ مائنڈڈ لوگ ہیں ان سے لڑائی نہ کریں، آہستہ آہستہ ان سے کنارہ کشی اختیار. سکھ مائنڈڈ لوگ ہیں ان سے کیسے بچا جائے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے یہ اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. میڈیکلی کیا کھانے سے پہلے ہمیں نہانا چاہیے یا پھر کھانا کھانے کے بعد بھی نہایا جا سکتے؟ کھانے کے بعد آپ کے جو بلڈ کا اکثر حصہ معدے کی طرف ہے، جی جی، آپ نہانا شروع کر دیتے ہیں. ایک ہیلدی لائف سٹائل کے لیے کتنی آپ کی نیند ہونی چاہیے؟ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈیلی 8 گھنٹے، 6 سے 8 گھنٹے ایک رینج ہے. غذا کیسی ہونی چاہیے، آپ کی خوراک کیسی ہونی چاہیے؟ فنڈامنٹل پرنسپل آف اسلام کہ میانہ روی اختیار کریں. السلام علیکم ناظرین، آج کل انسان کی زندگی میں اسپیشلی نوجوانوں کی زندگی میں بڑے مسئلے مسائل ہیں. ہیلدی لائف سٹائل کو کیسے مینٹین کیا جائے، اپنی ڈائٹ کا خیال کس طریقے سے رکھا جائے، اپنی پرسنل ہائیجین کو کس طریقے سے مینٹین کیا جائے. ناظرین، کچھ بڑے اہم سوالات ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں لیکن ہم سوال کرنے سے اور ان کا جواب تلاش کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ کبھی کوشش ہی نہیں کی جاتی. ٹیبوز سمجھا جاتا ہے کہ ٹیبوز ہیں، ان پر بات نہیں کی جاتی. تو آپ کے وہ تمام تر سوالات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، آج ہم ان کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسی لیے آج ہمارے پاس موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر ساجد قیوم، جنرل فزیشین ہے، پین مینجمنٹ کنسلٹنٹ بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ان کو اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ نوجوانوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے مختلف ایشوز کے اوپر، پرسنل ہائیجین کے اوپر، آپ کس طریقے سے ایک اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی بنا سکتے ہیں، اس پر یہ بہت کام بھی کر چکے ہیں. اور میڈیا کے اندر ان کا بڑا ایک رول ہے، وہ پازیٹیوٹی کو اور اویئرنیس کو پھیلانے کے لیے. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. سر، ہیلدی لائف سٹائل ایکچولی ہے کیا؟ اس میں نا ایک چیز کو پہلے سمجھیں کہ جو بیماریاں ہیں نا وہ 2 قسم کی ہیں. ایک وہ بیماریاں ہیں جن میں کوئی نہ کوئی جراثیم شامل ہوتا ہے، جیسے آپ کرونا لے لیں، اس میں کرونا کا وائرس ہے. ٹی بی لے لیں، اس میں ٹی بی کا بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس طرح ڈینڈرف لے لیں، اس میں ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جو کہ ڈینڈرف کاز کرتا ہے، فنگل انفیکشن ہم جس کو کہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی مختلف بیماریاں ہیں. اب ایک وہ بیماریاں ہیں جن میں کوئی جراثیم نہیں ہوتا. جو جراثیم والی بیماریاں ہیں اس میں تو ہم اس جراثیم کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیکٹیریا وائرس ہوگا، بیکٹیریا وائرس فنگس جو بھی ہے. اب آپ اس میں اس کو بھی مورد الزام دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ بیماری منتقل ہوئی، کیونکہ ان میں سے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ایک سے دوسرے کو وائرل انفیکشنز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. جیسے اب کئی ایسی بیماریاں ہیں جن میں کوئی جراثیم نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ہمیں بیماریاں وہ ہوتی ہیں. اچھا، اب وہ جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی نہ آپ کسی جراثیم کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، نہ آپ کسی شخص کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں. اچھا، جیسے مثال کے طور پر موٹاپا ہے، ایگزیکٹلی، شوگر کی بیماری ہے، جوڑوں کا درد ہے، ہارٹ کی بیماری ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جن میں کوئی جراثیم نہیں ہے لیکن ان میں قصوروار کون ہے؟ آپ خود یا آپ کا لائف سٹائل. تو وہ جو آپ کا پور لائف سٹائل ہے نا وہ بیماری پیدا کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے بیڈ لائف سٹائل یا ہیلدی لائف سٹائل. تو ہیلدی لائف سٹائل اختیار کریں گے تو آپ صحت مند رہیں گے. اگر لائف سٹائل آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ بیمار پڑیں. واہ، کیا زبردست آپ نے ڈیفینیشن سمجھائی ہے. مطلب وہ بیماریاں جو کہ کسی وائرس کی وجہ سے، کسی فنگس کی وجہ سے، کسی بیکٹیریا کی وجہ سے نہیں پھیلتی بلکہ خود آپ کی اپنی روٹین اور کیئر کی وجہ سے پھیلتی ہیں، وہ دیٹس ایکچولی اے بیڈ لائف سٹائل. تو اگر آپ ان سے بچ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ہوگا ایک ہیلدی لائف سٹائل. سر، اس کو مینٹین کیسے کیا جائے؟ مطلب پہلے تو یہ سمجھنے کہ لائف سٹائل اصل میں ہے کیا. وہ ایک چیز نہیں ہے. آپ کا موڈ بھی آپ کے لائف سٹائل میں آتا ہے، آپ کی کمپنی بھی آپ کے لائف سٹائل میں آتی ہے. دوست، کمپنی، جی آپ کی وہ جو ہے نیند بھی اس لائف سٹائل میں آتی ہے، آپ کی غذا بھی اس لائف سٹائل میں آتی ہے، آپ کی جو ہے وہ جو آپ سیر کرتے ہیں وہ لائف سٹائل میں آتی ہیں. تو یہ 8-10 چیزیں ہیں جو کہ لائف سٹائل میں آتی ہیں. سر، موڈ کا آپ نے ذکر کیا. موڈ آج کل نوجوانوں کا بڑا خراب رہتا ہے. جن زی جس کو ہم کہتے ہیں، آج کی نوجوان نسل
डिप्रेशन का शिकार है और देखते हैं सैड स्टेटस, सैड पोइट्री बड़ा लगा हुआ है, तो मूड कैसे ठीक रखा जाए, खुश कैसे रहा जाए? मूड देखें जी, एक तो ये है कि आप हालात जितने मर्जी बुरे हों, डिपेंड करता है कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप किसी चीज़ को परसीव किस तरह कर रहे हैं। अगर आप उसको नेगेटिवली परसीव करेंगे तो आप उसका आपके ऊपर नेगेटिव असर होगा। अच्छा, तो आपने ये इसके बारे में एक बड़ी शानदार बात कही है कि आपने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। कोई भी जो भी आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में है या कोई हालात आपके ठीक नहीं है, तो आप उसको रिएक्ट ना करें, रिस्पॉन्ड करें। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में फ़र्क क्या है? रिएक्ट ये होता है कि बंदा जज्बाती तौर पर फौरी तौर पे रिएक्शन दे देता है। रिस्पॉन्ड का मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए, एनालाइज करते हैं। हाँ जी, इसलिए इसमें हज़रत अली का एक बड़ा मशहूर कॉल है, बहुत ही शानदार, कि जी गुस्से में कभी फैसला ना करो और खुशी में कोई वादा ना करो। वाह। आप देखें कि जितनी भी हमारे मुल्क में तलाक़ें होती हैं वो गुस्से की वजह से होती हैं। बिल्कुल। और एक इंटरनेशनल सर्वे है कि दुनिया के जितने भी जराइम हैं, 70% जराइम जो है वो गुस्से की हालत में आपके होते हैं। अच्छा, अब आ जाता है कि ये सारी चीज़ों के साथ क्या ऐसी कोई टेक्निक भी है कि हम अपना मूड खुशगवार रखें? Exactly. मैं अपने जहाँ भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप में से हर बंदा दिन में 3-4 मरतबा वाशरूम जाता है। Exactly. तो आपने करना ये है कि वाशरूम में आपने जो शीशा लगा होता है उसमें आपने अपने आप को देखते होंगे, हर शख्स देखता है। बिल्कुल। तो उसमें आपको जो अपना अक्स नजर आ रहा है उसको देखकर एक स्माइल दें। अब एक बड़ी मशहूर कोटेशन है कि दुनिया का सबसे बद इखलाक शख्स वो है जो अपने आप को भी स्माइल नहीं दे सकता। तो जाहिर है कोई भी शख्स दुनिया का सबसे बद इखलाक शख्स बनना पसंद नहीं करेगा। तो आप जब अपने आप को स्माइल देंगे, फिर उसके बाद यह है कि अगर आप अपने आप को पसंद करते हैं, हर शख्स अपने आप को पसंद करता है, तो अपनी पसंद का इजहार अपनी शख्सियत से भी करें। अगर आप अपने आप को पसंद करते हैं तो कहें जी कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर आप अपने आप को प्यार करते हैं तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि आई लव यू। आपकी इस बात के बाद आज से मैंने भी वॉशरूम में जाकर खुद को देखना और स्माइल बात करनी। वैसे अब जब मैं जाकर देखूंगा तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, मैं कहता मेरे उस पर आ जाएगा, फेस पर आ जाएगा, बट दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। कंपनी का भी आपने बताया, कंपनी की भी बड़ी अहमियत होती है। लेकिन हाँ, कंप्लीट करने पहले मैं आपको बताता हूँ, बात बड़ी शानदार है कि आपने जब अपने आप को स्माइल दी, अपने आप को एक कॉम्प्लीमेंट पास किया, तो उसके बाद आपका मूड खुशगवार रहेगा। और सोचें कि दिन में जितनी मरतबा आप वाशरूम गए उतनी मरतबा आपने अपने आप को रिफ्रेश किया, स्माइल पास किया। अब वो रिफ्रेशमेंट जो है ना आपकी, और वो स्माइल आपके मूड की खुशगवारपन जो है वो उतनी देर तक कायम रहेगा जब तक कोई सिक माइंडेड बंदा उसको खराब ना कर दे। अच्छा, तो इसलिए सिक माइंडेड लोगों से बचें। सर कैसे बचा जाए? आजकल तो मतलब मुआशरे के अंदर इतनी नेगेटिविटी है और हर जगह पर आपकी लेग पुलिंग है, तो ऐसे फिर कल्चर में, ऐसे माहौल में, ऑफिस हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, आपकी फिर आपका पीयर ग्रुप हो, आपका ग्रुप हो, सोशल सर्कल हो, तो हर जगह पर लेग पुलिंग हो रही होती है। तो उस जो सर्कल के अंदर नेगेटिविटी है और ये जिस तरह आप कह रहे हैं सिक माइंडेड लोग हैं, उनसे कैसे बचा जाए? उसका मैं आपको बताता हूँ। पहली बात नो कहते हुए लोग बड़ा घबराते हैं। नहीं, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। उसका मेथड ये है कि पहली बात तो एक समझ लें कि कोई भी शख्स जो है ना, वो अपने मिलने जुलने वाले वो लोग जिनसे वो अक्सर मिलता है, उस तमाम लोगों की जो शख्सियत होती है उसकी एवरेज उसकी अपनी शख्सियत बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो अब ये है कि आपने क्या करना है कि एक लिस्ट बनाएं अपने तमाम दोस्तों की, और उसमें नोट करें कि सिक माइंडेड कौन सा है और पॉजिटिव माइंडेड कौन सा है। जो सिक माइंडेड लोग हैं उनसे लड़ाई ना करें, आहिस्ता आहिस्ता उनसे किनारा कशी इख्तियार करें। ये कैसे पता चलेगा दोस्तों में कौन सिक माइंडेड है कौन नहीं? ये देखें, आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपको एक अंदाजा हो सकता है कि यार ये बंदा जो है हमेशा नेगेटिव बात करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक ग्रुप था लोगों का, कोई 15 लोगों का ग्रुप था जो कि CSS की तैयारी कर रहे थे। उसमें से एक बंदा जो सिक माइंडेड था। अब वो 15 बंदे जो हैं, वो 14 बंदे वो जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं और उनका मकसद है कि ज़िंदगी में हमने कोई ऊंचा जाना है। अब वो बंदे ने जब भी उनमें बैठना, उसने कहना यार ये हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहना यार तरक्की करके क्या करना है, खानी तो 2 रोटियां ही हैं। अब आप सोचें कि जब वो एक
پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے، ہر بندے کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، یہ اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے یا اور کچھ نہیں، تو یہ ہمارا جو ایک مشن ہے اس کی پاور کم کر رہا ہے۔ اب کیا ان لوگوں میں سے ایک میرا شاگرد بھی تھا، جو اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ سر کیا کریں۔ میں نے کہا آہستہ آہستہ اس سے کنارہ کشی کر لیں، اب 15 بندے بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں اب 14 بندے بیٹھ کے پڑھ لیا کریں، اور اس کو وہ اگر کہے بھی نا کہ مجھے بٹھاؤ، اس کو کہو گیا چھوڑو، تم نے کیا کرنا ہے زندگی میں، تم نہ کرو۔ آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے نکال دیا، اور پھر 14 بندے وہ باقاعدہ سارے کے سارے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔ تو وہ آپ کو نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہماری ترقی کی رستے میں رکاوٹ ہے، ایسے لوگوں سے بچیں، اور آہستہ آہستہ آپ بچ سکتے ہیں۔ ان کے آپ خلاف نہ بولیں، اپنے آپ کو آہستہ آہستہ دور کر لیں۔ ایک دنیا کا بہت مشہور بندہ ہے، لوگ اس کو غلط معنوں میں لیتے ہیں، ہٹلر۔ ہاں، اس کی بہت مشہور کوٹیشن ہے کہ سک مائنڈڈ لوگوں سے تنہائی بہتر ہے۔ تو وہ کہتا تھا جی کہ اپنے دوستوں کی چھانٹی کیا کریں، اپنے دوستوں کی لسٹ بنائیں، اس میں دیکھیں کہ کون سا دوست جو ہے وہ آپ کی ترقی کے لحاظ سے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور ایسا دوست جو آپ کی ترقی کے لحاظ سے فائدہ مند نہیں ہے، اس بندے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، لیکن ڈیسنٹلی اور پولائٹلی۔ بڑا یہ آپ نے کروشل آپ نے پوائنٹ ڈسکس کیا، کیونکہ آج کل کی کمپنی بڑی میٹر کرتی ہے، اور پھر ایسی کمپنی میں اگر آپ بیٹھ رہے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، آپ کے زندگی کے گولز آپ کی سوچ سے الائن نہیں ہو رہی، تو پھر واقعی میں آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو دیکھیں۔ سر، مثبت سوچ کتنی ضروری ہوتی ہے اس تمام تر پروسیس میں، کہ آپ پازیٹیولی چیزوں کو لیں، پازیٹیو دیکھیں، ڈسپائٹ آف دا ہرڈلز، ڈسپائٹ آف دا چیلنجز، کیونکہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ کی مینٹل کنڈیشن جو ہے وہ بھی آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی مینٹل سٹیٹ ٹھیک ہونی چاہیے، مینٹلی اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے تبھی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، اس میں تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ فرق کیا جائے کہ مثبت سوچ اور منفی سوچ میں فرق کیا ہے۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس حالات آ گئے ہیں تو آپ نے اس کے برائٹ پہلو کو اس کو زیادہ توجہ دینی ہے، لیکن جو اس کا منفی پہلو ہے اس کو اگنور کرنا ہے۔ اب دوسرا بندہ جو منفی سوچ کا ہے وہ منفی سوچ کو پرومیننٹلی دیکھے گا، جو اس کا مثبت پہلو ہے اس کو وہ اگنور کرے گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک کمرے کو ایک جگہ پہ ایک باس نے صاف کرایا، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا کہ اس کمرے کے ایک کارنر میں ہلکا سا ایک طرف تھوڑا سا نشان رہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ باس نے ایک مثبت سوچ والے بندے کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ کہ کیا صورتحال ہے۔ وہ گیا اور واپس آ کے کہتا ہے جی کہ بالکل ٹھیک ہے، جس نے صفائی کی ہے بالکل بہت اچھی صفائی کی ہے، سارے کا سارا کمرہ صاف ہے، صرف ایک کارنر اس سے مس ہو گیا، اس کارنر سے اگر وہ اتنا حصہ بھی صاف کر لے تو بہتر ہے۔ اب دوسرا بندہ جو منفی سوچ کا تھا وہ جب گیا واپس آ کے اس نے یہ کہا کہ کوئی صفائی نہیں ہوئی جی، فضول صفائی کی ہے اس نے، گند پڑا ہوا ہے، وہ دیکھیں وہ سارا کونا جو ہے وہ گندا ہے۔ تو کیا ہے کہ مثبت سوچ اور منفی سوچ میں اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھنا ہے، جو بھی پہلو ہو اس میں ہمیشہ دونوں پہلو جو ہے نا ان کو سامنے رکھیں، لیکن مثبت سوچ کو ہمیشہ آپ اگر پرائم امپورٹنس دیں گے اور ویلیو زیادہ دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی آئندہ زندگی بھی مثبت طریقے سے چلے گی۔ تو سر، وہ جو مائنڈ میں نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی سوچ پر کنٹرول تو نہیں ہے، تو پھر وہ جو نیگیٹیوٹیز کچھ مائنڈ میں آتی ہے، سم ٹائمز آپ ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہیں، اس سے کیسے بچا جائے؟ مطلب یہ پاسبل تو نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ پازیٹیولی سوچتے رہیں، ہر ٹائم آپ مثبت سوچتے رہیں، تو اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ بڑے اچھے طریقے سے سائیکالوجی کیا کہتی ہے؟ سائیکالوجی کہتی ہے آپ اپنے خیالات کو اینالائز کرنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کو منفی خیال آیا، مسلسل آ رہے ہیں، آپ ان کو اینالائز کریں۔ جیسے جیسے آپ ان کو اینالائز کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ ساتھ میں اینالائز کر کے یہ بھی تو نتیجہ نکالیں گے نا کہ یہ منفی خیال ہے، بالکل یہ مثبت خیال ہے۔ تو جب آپ اینالائز کریں گے نا کہ یہ منفی خیال ہے تو پھر ساتھ ہی آپ انالیسس کے ساتھ آپ ایک اپنا کنکلوژن دیں کہ یہ منفی خیال ہے، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ جو ہے اس کی بجائے میں مثبت خیال کیوں نہ رکھوں، تو اسی کا متبادل مثبت خیال جو ہے وہ اپنے ذہن میں ڈال لیں۔ تو وہ انالیسس کافی حد تک آپ کی وہ جو چھاننی بنتی ہے نا وہ اس میں سے فلٹر کر دے گا بہت ساری چیزیں۔
एनालिसिस की आदत डालें और आप देखिएगा कि खुद ब खुद आपके मनफी ख्यालात कम होते जाएंगे और मुस्बत आते जाएंगे। मुस्बत ख्याल की सबसे बड़ी अच्छी निशानी ये होती है कि वो आपकी बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, मनफी ख्याल आपको बदतरी की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, तो ये एक एनालिसिस का बड़ा अच्छा तरीका होता है। ये बड़ा आपने क्रूशियल पॉइंट बताया। इसके साथ साथ हम देखते हैं आजकल नौजवान नस्ल को मोस्टली उनके अंदर, मैंने जो चीज़ एनालाइज की है कि वो अपनी खुशी की परवाह नहीं करते, वो दूसरे बंदे की खुशी के लिए, दूसरे बंदे को खुश रखने के लिए, दूसरे बंदे को सेटिस्फाई रखने के लिए, अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए, ऑफिस में है, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को खुश रखने के लिए, घर में है अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए, बाहर यूनिवर्सिटी में है अपने क्लास फेलोज को खुश करने के लिए एक्शंस करता है। क्या उसकी ज़ात खो नहीं जाती इस तरीके से? क्या वो इसीलिए यहाँ पर आया कि वो दूसरों को खुश रख सके, और वो इस वजह से भी बड़ा डिस्टर्ब रहता है? आजकल की नौजवान नस्ल की मैं बात करूँ तो इस हवाले से भी कुछ आप थोड़ी रोशनी डालें कि इज़ दिस राइट, इज़ दिस रॉन्ग, और इसमें क्या आपकी ज़ात खो जाती है, और क्या ये उस हेल्दी लाइफस्टाइल से कोई रिलेट करते हैं या नहीं? इसमें देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ याद रखें, अल्लाह ताला ने आपको एक ज़िंदगी दी है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आप ज़रूर आपसे पूछेगा कि ये जो मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, एक अच्छी लाइफ दी, उसके साथ तुमने क्या सलूक किया। अगर आप अपने साथ बुरा सलूक करते हैं तो ये इसकी भी पूछ गुछ आपके साथ होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये याद रखें, सारी दुनिया को, हर शख्स को अल्लाह ताला भी खुश नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? कि इसमें एक मसलहत है उसकी। तो हम अपने आप को क्यों इतना सुपीरियर मान लें कि हम हर एक को खुश करने की कोशिश करें? तो बेहतर ये नहीं है कि हम अपने मकसद की तरफ ध्यान रखें और अपनी ज़िंदगी को ऑब्जेक्टिव बेस चलाएं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को, अपना जो ज़िंदगी का मकसद है ना, जो हमने ज़िंदगी में हासिल करना है, वो उसकी तरफ ध्यान रखें, और फिर खुद ब खुद लोग फिल्टर होते जाएंगे। आपको एहसास होगा कि इसको मैंने खुश करना है कि नहीं करना। फिर एक और भी मेयार है, आप देखें कि ये आया जिस बंदे को मैं खुश कर रहा हूँ, आया इसको खुश करना जस्टिफाइड भी है कि नहीं है। ये एनालिसिस बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आप इस चीज़ पे सोचना शुरू कर देते हैं कि भी इस बंदे को खुश रखना जस्टिफाइड है कि नहीं है, तो आप खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। अगर अनजस्टिफाइड है आप ना करें, पीछे हट जाएं। अगर जस्टिफाइड है तो फिर आप ज़रूर करें। एक और भी मेयार है, वो ये है कि आप किसी बंदे को खुश करना चाहते हैं। आप ये सोचें कि इस बंदे को अगर मैं खुश करता हूँ तो क्या मेरा अल्लाह मुझसे खुश होगा? सुभान अल्लाह। अगर आपको ये एहसास होता है कि मेरा अल्लाह इस बंदे को खुश करके खुश नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मकसद है वो अनफेयर है, आप वहाँ रुक जाएं। अगर एक दूसरा बंदा आता है, एक वाकई डिजर्विंग बंदा है, आप सोचें कि जी इस बंदे को खुश करके मेरा अल्लाह लाजमी खुश होगा, क्योंकि ये जस्टिफाइड है। आप तन मन धन से उसको खुश करें। तो इस तरह जो है ना, आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपका खुद ब खुद एक बैलेंस आ जाएगा कि सही जगह पे आप लोगों को खुश रखेंगे और गलत जगह पे आप लोगों को खुश नहीं रखेंगे। ज़बरदस्त। और आप फिर जब इस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो लोग खुद ही से फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ही पता लग जाएगा कि किसको खुश रखना है, किसको खुश नहीं रखना। अच्छा, अभी सर थोड़ी सी पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, उन चीज़ों की जो कि बड़ी बुनियादी हैं, लेकिन ये हम सब के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। आवाम को इन बातों का इल्म नहीं होगा। सबसे पहले तो बात करते हैं नींद की। इंसानी ज़िंदगी में नींद की कितनी इम्पोर्टेंस है, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कितनी आपकी नींद होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी, आपका माइंड एक्टिवली काम कर सके, ठीक से काम कर सके? पहली बात तो ये है कि नींद का मकसद समझ लें। नींद क्या है? हमारे सारे दिन की जो भी हमने एफर्ट की होती है और उसकी वजह से हमारे जिस्म के ऊपर जो असरात आए होते हैं, ये उसकी समझ लें रिकवरी है। नींद जो है ये सिंपल खाली ये नहीं है कि आप सो गए। आपका जिस्म उस वक्त फौरी तौर पर वो एक्टिव हो जाता है जहाँ जहाँ कोई डिफेक्ट होता है। आप कभी आजमा के देखिए, अगर आपको जिस्म में कहीं दर्द हो रही है तो जब आप उठेंगे ना तो काफ़ी हद तक वो दर्द जो है या तो मुकम्मल ठीक हो चुका होता है या काफ़ी हद तक ठीक हो चुका होता है। क्यों? कि हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है वो नींद के दौरान एक्टिव हो जाता है। तो नींद बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, ये हमारी रिकवरी है। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है कि होनी कितनी चाहिए। एक तो ये है कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए।
मस्ट है। हाँ जी, डेली। लोग कहते हैं 18 घंटे भी काम कर सकते हैं नौजवान, नहीं करना चाहिए। देखें, बात मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक एक्सेप्शनल केसेस में तो लोगों ने 4-4 घंटे भी नींद ली है। इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि कितनी नींद के बाद आप टोटली मेंटली और फिजिकली फ्रेश होते हैं, ये भी एक पॉइंट है। वो लोग अक्सर ये करते हैं कि 5 दिन उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, फिर कहते हैं हम वीकेंड पे नींद पूरी कर लेंगे, 4 घंटे सोते हैं, 3 लेकिन घंटे मैं सोते आपको हैं। बताता हूँ कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेली 8 घंटे, 6 से 8 घंटे एक रेंज है। उसमें जो है ना, इसकी डिवीजन भी है कि आप रात को एक हिस्सा नींद का पूरा करें और कुछ हिस्सा दोपहर को पूरा करें, जो कि हमारे नबी की सुन्नत भी है। मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ। एक किताब है बड़ी मशहूर, अमेरिका के सदर निक्सन ने लिखी है। किताब का नाम है लीडर्स। उसमें वो बरतानिया के एक बहुत मशहूर लीडर चर्चिल से मुलाकात उसकी होती है। वो डिनर के ऊपर मुलाकात होती है, तो वो देखता है कि चर्चिल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो वो चर्चिल को पूछता है कि भाई, आप मुझसे उम्र में बड़े हो, लेकिन ये डिनर का टाइम है, सारा दिन जाहिर है आप भी फारग थोड़ी रहेंगे, तो आप मुझसे ज़्यादा फ्रेश लग रहे हो, तो वजह क्या है? तो उसने, चर्चिल ने जवाब दिया कि भाई, मैंने एक मजहबी पेशवा, उसकी बायोग्राफी में पढ़ा था कि दोपहर के वक्त थोड़ी देर के लिए शॉर्ट नैप, जिसको हम सिएस्टा या हम अपनी ज़ुबान में कैलूला कहते हैं, वो अगर आप कर लेंगे तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और वो आपको दिन के बाकी हिस्से में फ्रेश भी रखेगा। और वो, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि उसने उसका नाम नहीं लिखा उस किताब में, मेरा ख्याल है कि उसने हमारे नबी की बायोग्राफी पढ़ी, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से ज़िंदगी के हर मुकाम के लिहाज से अगर हमें कोई हिदायत मिलती है तो हमारे नबी की ज़िंदगी से ही मिलती है। तो लोग वो जो नींद पूरी नहीं कर रहे, मतलब वीक डेज में, वीकेंड पे पूरी करते हैं, तो ये उनके लिए फिर वो क्या कुदरत के तरीकाकार के खिलाफ है। कुदरत आपको डेली बेसिस के ऊपर काम और डेली बेसिस के ऊपर जो रेस्ट है वो एडवाइस करती है। तो कॉल सेंटर्स में जो काम करते हैं, जो रात को काम करते हैं, रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, फिर वो उनका लाइफस्टाइल एक बन गया हुआ है, लेकिन हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करती उनकी। लेकिन कुदरत का निज़ाम ये नहीं है, लोगों ने ये उनका अपना बनाया हुआ निज़ाम। अच्छा, कुदरत का निज़ाम यही है, हमारे मज़हब में भी यही है कि दिन को हमने काम के लिए बनाया है और रात को हमने आराम के लिए बनाया है। अब उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा ऐसा बन गया, हम उनके ऊपर एतराज़ नहीं करते, उनकी रोज़ी रोटी का मसला है, लेकिन मसला ये है कि ये कुदरती नहीं है। तो कुदरत के निज़ाम के जब खिलाफ चलेंगे तो साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे ना। जी, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उन लोगों के ऊपर। वो खाली ये चीज़ें नहीं करते, वो उसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि हेल्दी लाइफस्टाइल के मुताबिक ठीक नहीं है। वो जो फास्ट फूड और इस तरह की चीज़ें जो और रात को फिर जागने के लिए, आपको माइंड को एक्टिव रखने के लिए, फिर वो स्मोकिंग भी, स्मोकिंग और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉफ़ी, कैफीन का ज़्यादा जी जी, तो वो भी चीज़ें होती। खाली नींद जो है वो अकेला फैक्टर नहीं है, और बहुत से फैक्टर हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक्सरसाइज, आजकल के नौजवान, डिजिटल मीडिया का दौर है, काम किया, घर आए, स्क्रॉलिंग की, रील्स देखी, सो गए, बस यही, ऑफिस गए, घर आए, सो गए। एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है आजकल? देखिए, 30 मिनट की वॉक, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर लें, चाहे ज़रा स्लो कर लें, ये सेहत के लिए बुनियादी तौर पर ज़रूरी है अगर आप बीमार नहीं हैं। कुछ लोगों का, जिम फ्रीक्स भी कुछ होते हैं, कहते हैं जिम करेंगे। ये एक्सरसाइज और जिम का अगर कंपैरिजन किया, जिस तरह वो वॉक और जिम का, तो अगर आप कार्डियो करते हैं, सिंपल वॉक करते हैं, तो क्या दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ? डिपेंड करता है कि आप, पहली बात तो ये है कि देखें, एक बीमार बंदे के लिए मेयार और होगा और सेहतमंद बंदे के लिए बीमार और होगा। तो बेस्ट तो ये है कि अगर आप या तो सैर कर लें चुपचाप, लेकिन अगर आप जिम करना चाहते हैं तो वो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ना करें। जिम के लिए एडवाइस ज़रूरी जी, है? जिम के लिए एडवाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर आपकी हेल्थ के मुताबिक, एक शुगर का बंदा है या हाई ब्लड प्रेशर का बंदा है या हार्ट पेशेंट है, तो वो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर चलेगा तो उसके लिए सख्त नुकसान है। अच्छा सर, इसमें ये भी कहीं पर मैंने सुना था कि जिम के साथ या फिर एक्सरसाइज के साथ आपकी जो सेहत है वो डाइट पर भी बड़ी मैटर करती है। ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए, आपकी खुराक कैसी होनी चाहिए? डाइट का देखें, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये समझ लें कि हमारा ये मुंह जो है ना, ये एक गेट है। इसके ज़रिए अगर आप अच्छी ग़िज़ा लेंगे तो सेहत अंदर जाएगी। अगर आप
अब बुरी गज़ा लेंगे या अनहेल्दी गज़ा लेंगे तो बीमारी अंदर जाएगी। बिल्कुल, नो तो डाउट। ये गज़ा जो है ना आपके लिए इलाज भी बन सकती है, ये गज़ा आपके लिए बीमारी का सोर्स भी बन सकती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसमें ये बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपको पहली बात तो ये कि गज़ा खानी ही क्यों चाहिए। ज़्यादातर जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है गज़ा। हाँ जी, आप कहते हैं जी जिंदा रहने के लिए। अब देखें इसमें दो नज़रिए हैं जी, एक ये है कि जिंदा रहने के लिए खाओ, बिल्कुल। दूसरा नजरिया है कि खाने के लिए जिंदा रहो। ये दोनों ही नजरिए गलत हैं। फिट रहने के लिए खाओ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ वो क्यों गलत है, पहले ये समझ लें। एक तो ये है कि अगर आप कहते हैं खाने के लिए जिंदा रहो, तो खाने के लिए अगर जिंदा रहना है तो आप लाजमी बात है आप ज्यादा खाओगे। बिल्कुल। अब ज्यादा खाओगे तो बीमार होगे। दूसरा है जिंदा रहने के लिए खाओ, अगर जिंदा रहने के लिए खाना है तो कम खाओगे। हाँ, तो कम खाना भी गलत है। गलत। कुदरत जो है आपको मोत दिल रखना चाहती है, एतदाल म्याना के रवि साथ। भी, जो इस्लाम का बुनियादी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम के म्याना रवि इख्तियार करें। तो अब असल नज़रिया क्या है, गज़ा खानी क्यों चाहिए? गज़ा इसलिए खानी चाहिए कि आपके जिस्म को गज़ा उतनी ताकत दे कि आप सारा दिन काम बगैर किसी थकावट या किसी मुश्किल के कर सको। तो गज़ा अगर आपको एनर्जी नहीं देती तो फिर वो गज़ा का मकसद ख़त्म हो जाता है, नंबर एक। नंबर दो, गज़ा जो है वो जो अगर आप बीमार हैं तो आपको वो गज़ा लेनी चाहिए जिसको हम इलाज बिल गज़ा भी कहते हैं, जो कि आपकी बीमारी में भी आपको फ़ायदेमंद है। यानी परहेज जिसे कहा जाता है कि परहेज उस बीमारी के लिहाज से आपने गज़ा लेनी है। ठीक है। तो ये गज़ा का बुनियादी मकसद जो है वो चूंकि ताकत हासिल करना है, इसलिए हर बंदे को अपना एक एनर्जी फूड ढूंढना चाहिए। हर बंदे का एनर्जी फूड डिफरेंट होता है। ऐसे मरीज़ भी देखे हैं जो कहते हैं जी मैं 2 अंडे खा लूँ तो मैं सारा दिन एक्टिव महसूस करता हूँ। कई ऐसे हैं जो कि कहते हैं जी मैं पराठा खा लूँ तो मैं एक्टिव रहता हूँ। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि मैं 1 मुट्ठी बादामों की खा लूँ सुबह तो मैं उससे मेरा ब्रेन भी एक्टिव रहता है। तो आपने अपना एनर्जी फूड ढूंढना है। तो जिस चीज़ के साथ आप समझते हैं कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप बीमार हैं तो इन सब में से कोई ना कोई चीज़ खाने से या एनर्जी फूड लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाज़मी कि जी ये जो है ये गज़ा मुझे ताकत देती है तो मेरी बीमारी के लिहाज से आया ये जस्टिफाइड है या नहीं है। और ये भी बताइएगा कि ग़िज़ा या हम जो खाना खा रहे हैं, लोग कहते हैं खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए। पता नहीं ये मिथ है या इसमें कोई हकीकत है, आप इस पर बताइए मेडिकली, क्या खाने से पहले हमें नहाना चाहिए या फिर खाना खाने के बाद भी नहाया जा सकता है? इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। गज़ा का असर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम गज़ा ले लेते हैं ना, पहले तो एक पॉइंट मैं और आपको बता दूँ कि यहाँ भी देखें इस्लाम की बात आती है। इस्लाम क्या कहता है, अपने मैदे के 3 हिस्से करो, एक हिस्से में सॉलिड पार्ट, एक हिस्से में लिक्विड और एक हिस्सा खाली छोड़ो। हम तो 4 हिस्से भर लेते हैं 3 के बजाय। अब देखें एक चीज़ पे ज़रा गौर करें, ये मेरे हाथों की तरफ देखें जी। ये फ़र्ज़ करें कि मैदा है। अब उस ज़माने में आज से 1500 साल पहले ये तस्वीरें एनाटॉमी की किसी के पास नहीं थी। लेकिन अब ये है कि अब ये मैदा जो है ना, ये जब गज़ा को हजम करता है ना, डाइजेस्ट करता है, तो इसकी मूवमेंट ऐसे होती है। अच्छा। अब सोचें कि अगर आपने ये ऊपर तक भर लिया तो वो तो मूव ही नहीं कर सके। अब इस्लाम के लिहाज से देखिए, अगर आपने 1/3 खाली छोड़ा हुआ है तो वो बड़े आराम से मूव कर सकते, मूवमेंट होगी। ठीक है। अब एक तो ये गड़बड़ है, दूसरा ये है जो आपने बात की उस लिहाज से ये है कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जब गज़ा ले लेते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करना है। बिल्कुल। तो डाइजेस्ट करने के लिए मैदे की तरफ से सिग्नल जाते हैं ब्रेन को कि जी इतनी गज़ा आ गई है, इसको मैंने डाइजेस्ट करना है। ठीक है। तो उस लिहाज से ब्रेन जो है ना वो अपने मैकेनिज्म के ज़रिए ब्लड सप्लाई मैदे की तरफ बढ़ा देता है। मैदे की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ने से क्या होगा कि उस जगह पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, मैदा ज़्यादा पावरफुली एक्ट करता है और गज़ा को हज़म करता है। उसमें क्या होता है, कई लोगों का आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद उनको ना नींद आनी शुरू हो जाती है। सबको आती है, मुझे भी आती है। हाँ, आपको भी आती है, लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ब्रेन से आपका कई दफ़ा जिन लोगों में खून की कमी होती है ब्रेन में खून की कमी हो जाती है। ब्रेन को हर सूरत
20% ब्लड चाहिए होता है। अच्छा 20 से 19 पे भी आ जाएगा ना तो ब्रेन के अंदर वो ड्राउजीनेस या गुनूदगी आनी शुरू हो जाती है। अब अगर आपने कम खाया है, पेट भर के नहीं खाया, जी जी 1/3 जगह छोड़ी हुई है, तो आपको वो गुनूदगी नहीं आएगी। नहीं मुझे तो बहुत, इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा खाना आप खाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैदा भर के खाते हैं और मैदा भर के अगर आप नहीं ना खाते। अब मैं एक और आपको मिसाल देता हूँ, मदीने का वाकया है कि एक हकीम आया था मदीने में जी जी और 3-4 महीने वो मदीने में रहा। अब 3-4 महीने उसके पास मरीज ही कोई नहीं आया। रसूल करीम की खिदमत में हाजिर हुआ जी कि मैं मदीना छोड़ के चला जाऊं। उन्होंने कहा बात यह है कि इस्लाम के मुताबिक मदीने के लोग जो हैं वो इस तरह का लाइफस्टाइल इख्तियार कर रहे हैं, वो इतना मैदा खाली छोड़ के तो वो ग़िज़ा लेते हैं, उस हिसाब से लेते हैं, अपने आप को ओवरलोड नहीं करते, तो इस वजह से ये लोग सेहतमंद रहते हैं। नहाने की हम बात कर रहे थे, अक्सर लोग जिम करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, वॉक करने के बाद आते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, या फिर गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, यूनिवर्सिटी से आते हुए फ़ौरन नहा लेते हैं, शावर ले लेते हैं, तो वो सेहत के लिए क्या ख़तरनाक हो सकते हैं? बिल्कुल ख़तरनाक हो सकता है। वो इसलिए कि अब देखें आपने खाना खाया, ठीक है, खाने के बाद आपके जो ब्लड का अक्सर हिस्सा मैदे की तरफ है, जी जी आप नहाना शुरू कर देते हैं, तो आपने तो ब्लड का सारा सर्कुलेटरी सिस्टम खराब कर दिया। तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है आपको, और बहुत सारे लोगों को होता है। और मेरे अपने कई जानने वाले लोग हैं जो कि जिम के बाद पसीना आया हुआ है, पसीना, स्वेटिंग हो रही है, स्वेटिंग हो रही है, आके नहाना शुरू कर दिया और वो फिर उनकी जान बचानी मुश्किल हो। और मेरे एक नाम नहीं मैं लेना चाहता, एक आई स्पेशलिस्ट थे, वो जिम से आए हैं यंग एज, और आके नहाना शुरू कर दिया और फिर वहीं पे वॉशरूम में गिर गए, उनको उठा के डॉक्टर्स हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन 3 दिन दाखिल होने के बावजूद उनकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। इतना खतरनाक ये खतरनाक हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि आपकी जिम की एक्सरसाइज कितनी थी, आपको पसीना कितना आया हुआ था, आपका ब्लड प्रेशर क्या था, आपका शुगर लेवल क्या था, ये सारी चीजें हमें बाहर से तो नहीं पता चलती। ये तो बड़ी, लेकिन ये है कि आप फिर एक और चीज, अब देखिए मैं आपको बताऊं, बड़ी शानदार बात है, वो ये है कि आपने नहाना किस तरह है। उस बंदे की जब डिटेल देखी गई तो ज्यादातर लोग शावर से नहाते हैं, ऐसे ही है। अब अगर यही लोग बैठ के इस्लाम के लिहाज से नहाते तो इनको कुछ नहीं होता। इस्लाम में क्या है? इस्लाम में ये है कि आप बाल्टी से नहाएं, बैठ के नहाएं, पहले वजू कर लें। अगर आप पहले वजू करके अपने आप के जो अक्सर वो पार्ट्स हैं अपने आप को इजी कर लेते हैं, आप बैठे हुए हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा, स्टेबल हो जाता है ना टेम्परेचर, उतनी देर में स्टेबल हो जाते हैं। तो वो आप ये गौर करें कि ये इस्लाम के असूल बज़ाहिर कितने पुराने हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन आज भी वो इतने ही इफेक्टिव और इतने ही तरोताज़ा हैं और इतने वो असरअंदाज हैं कि वो उसके ऊपर हैरत होती। अच्छा ये भी सर बताइएगा कि नहाते हुए साबुन का कोई इम्पैक्ट होता है, इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कौन सा? क्योंकि आजकल तो आपको पता है मार्केट में इतनी डाइवर्सिटी है, एंटी बैक्टीरियल सोप्स हैं, फिर कुछ वाइटनिंग सोप्स भी हैं, ब्यूटी सोप्स भी हैं, साबुन कौन सा इस्तेमाल करें? देखिए साबुन का जहाँ तक ताल्लुक है, साबुन का जो असल मकसद है वो है क्लीन करना। बिल्कुल, दैट डिपेंड्स कि आपने अपने आप को क्लीन किया है कि नहीं किया। क्योंकि बॉडी पे जाहिर सी बात है जर्म्स वगैरह होंगे, बैक्टीरिया, स्वेटिंग वगैरह जब होती है बाहर से आप आते हैं। जर्म से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जी जी, बात ये है कि हमारी स्किन जो है इसके ऊपर 2 तरह के मसाम हैं जी, एक चिकनाई के और एक पसीने के। बिल्कुल। और ये चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये दोनों मसाम जो हैं इनके बैकग्राउंड में गदूद हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। ठीक है। तो वो जो गदूद हैं वो अपनी सिक्रीशन जारी रखते हैं सारा दिन। सर्दी होगी तो कम काम करेंगे, गर्मी होगी तो ज़्यादा काम करेंगे। स्वेट ग्लैंड्स का भी आपको वो पसीने की शक्ल में, ड्रॉपलेट की शक्ल में नज़र आ जाते हैं। जो सेबेशियस ग्लैंड हैं उनकी चिकनाई भी कई लोगों का आपने देखा होगा, बैठे हैं कि वो नाक चमकना शुरू हो जाता है, ऐसे गाल ही चमकना शुरू स्वेटिंग, हो जाता है। वो तो यानी कि ये शाइन आ जाते हैं। जी शाइन आ जाते हैं। दोनों तरह के ग्लैंड्स जो है ना वो सारा दिन काम करते हैं। आपके फेस पे भी वैसे मेरे शाइन आ फेस पे रहा भी हैं, आपके फेस के ऊपर भी हैं। तो वो ये एक नॉर्मल कुदरत का एक तरीक़ेकार है। अब मसला ये है कि जो आप लाहौर सिटी की बात कर लें जी,
लाहौर में चाहे आप अंदर बैठे हैं, चाहे बाहर बैठे हैं, चाहे जहाँ भी हैं गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी मट्टी आनी ही आनी है। इसमें कोई दो राय नहीं ठीक है है। ना। अब क्या होगा कि ये जो ग्लैंड्स हैं इन्होंने अपनी सिक्रीशंस देनी है, इनको आपने अगर साफ नहीं करते तो मट्टी भी आ रही है तो इनके मुंह बंद होंगे। बहुत ही बारीक मुंह होते हैं, बिल्कुल। ये अरबों की तादाद में ग्लैंड्स हैं, करोड़ों की तादाद में नहीं, अरबों की तादाद में ग्लैंड्स हैं। अब इसलिए बेस्ट मेथड ये है कि अगर आपने नहाना है तो रात को सोने से पहले नहाएं। और दिन में एक मरतबा, दो मरतबा, कब? 2 मरतबा तो बेस्ट है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, यूरोप में बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने उनके 80% तक उनकी आबादी जो है ना रात के वक्त नहाती है। जापान का मैंने पढ़ा था तो 96% लोग रात को सोने से पहले नहाते हैं। अमेजिंग। अब नहाने में साबुन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आप ये स्किन को मलें पूरे जिस्म की, ताकि वो जो आपके ग्लैंड्स के कुछ जो वो मुंह dust बंद हो से रहे cover हैं, हो जो गए हैं। डस्ट से आपके मुंह बंद हो रहे हैं, वो मुंह उनके खुल जाएं। अगर उनके मुंह खुलेंगे, ग्लैंड सही फंक्शन करेंगे तो आपकी स्किन जो है उसके ऊपर एंटी एजिंग असरात आएंगे, आपकी स्किन हेल्दी होगी, फ्रेश होगी। लेकिन अगर आप नहीं नहाते तो फॉर एग्जांपल आप रात को नहाए बगैर सो गए तो सुबह तक वो उस डस्ट ने या उन वो जो सिक्रीशंस जमा होके वहां जम गई है मुंह के ऊपर, उसने जो बुरे असरात दिखाने हैं सुबह तक हो जाएंगे। सुबह उठ के आपने नहा लिया तो डैमेज तो हो गया। एग्जैक्टली। तो अगर आप नहाना चाहते हैं सुबह तो बेशक नहाएं, लेकिन ये है कि रात को सोने से पहले भी नहाएं। सर ये स्किन के ऊपर एक्ने और रैशेज, आजकल नौजवान नस्ल के मार्क्स, और ये बड़ी ख़राब भी हो रही है स्किन नौजवानों की, कमज़ोर हो चुकी है स्किन, जीन्स तब्दील हो रहे हैं, या फिर ये प्रॉपर केयर की वजह से नहीं हो रही? मेरा ख्याल है कि केयर नहीं है, केयर नहीं है। और ये एक चीज़ मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन ये फैक्ट है कि ये जो मेकअप है दैट इज़ प्योरली केमिकल, और वो अगर जहाँ जहाँ भी वो किया हुआ है, मतलब कोई भी ख़वातीन की तो चीज़, स्किन उससे- फिर नहीं बचेगी। नहीं, वो देखे ना, उसने क्या करना है, आपके वो स्वेट ग्लैंड्स को भी बंद कर दिया, उसने आपके जो स्पेशियस ग्लैंड है उनके मुंह भी उनको भी बंद बंद कर कर दिए। दिए। और देख, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्किन में, एक हम टर्म कहते हैं कांटेक्ट टाइम, कि वो जो चीज़ आपने एक आर्टिफिशियल अपनी स्किन के ऊपर लगा ली है, वो कितनी देर के लिए लगाई है, 15-20 मिनट के लिए लगाई है तो खैर सर इतना वो मसला तो नहीं। लिखा होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर कि ये ऑर्गेनिक है, ये नेचुरल है। जो भी है, लेकिन आपने अपने स्किन के ग्लैंड्स के मुंह तो बंद कर दिए। अच्छा। जितनी मर्जी आप जबरदस्त चीज लगा लें, अगर वो नेचुरल चले ठीक है जी, आपने गुलाब का अरक लगा लिया, कोई बात नहीं। वो कुछ लोग रात को सोने से पहले खीरा लगा रहे होते हैं। कल परसों मैंने खीरा सिस्टर तो को देखा, नेचुरल है, वो तो फायदेमंद है, वो तो ग्लैंड्स को खोलता है। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। वही मैंने कल परसों रात को देखा, मेरी सिस्टर सोने से पहले खीरा अपने वो स्किन पर लगा रही थी। मैंने कहा ये पता नहीं क्या कर रही है। कुछ लोग एलोवेरा भी लगाते हैं, तो मतलब वो उनसे चीजें कि- ठीक है। उनसे आप कहिएगा अपनी सिस्टर से कि खीरा आप लगा लें, जहां उसको लगाना जरूरी है वहां उसको उतारना भी जरूरी है। हाँ, सही। बहुत से लोग एक चीज लगा लेते हैं जी। कि जी फायदेमंद है, लेकिन वो चीज इटसेल्फ अगर ज्यादा देर पड़ी रहेगी वहां तो वो अपने आपके ग्लैंड्स के मुंह को बंद करेगी, उसको उतारना भी जरूरी है। सर एक और बस लास्ट क्वेश्चन, जो कि ये मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। बाल बड़े सफ़ेद हो रहे हैं नौजवान नस्ल के, वक्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं। मेरे भी बाल में माशाल्लाह फ्रंट से जो है वो बड़े सफ़ेद होना शुरू हो गए। कोई कहता है आप ओवर थिंकिंग करते हो, कोई कहते हैं कि आप टेंशन ज़्यादा लेते हो। तो ये बाल क्यों चिट्टे हो रहे हैं और ये कैसे इनसे बचा जाए? बाल चिट्टे होने की जो वजूहत होती है ना, उसमें एक तो बायोटीन एक बी कम्प्लेक्स है, वो उसका बड़ा रोल है, उसकी डेफिशिएंसी होती है। हमारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी इसलिए भी होती है कि हमारा मुल्क और ये साथ का जो दूसरा मुल्क है इंडिया, इन मुल्कों के बारे में ये कहा जाता है कि दीज आर कंट्रीज विच ईट दी ओवर कुक्ड फूड, यानी कि ये वो मुल्क हैं जो कि ज़्यादा पकी हुई चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल। अब जब किसी चीज़ को ज़्यादा पका लिया जाता है तो उसके विटामिन्स जो है ना, स्पेशली बी कम्प्लेक्स जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो जो बी कम्प्लेक्स की कमी है, या तो फिर आप उसकी बायोटीन की कोई गोली ले लें तो आपके बाल ठीक रहेंगे। दूसरे नंबर पे आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है। तीसरे नंबर पे विटामिन सी। अब ये चीज़ें जो हैं अपनी एक एनालाइज करें कि आपकी डाइट में ये चीज़ें हैं। अव्वल तो विटामिन डी तो स्पेशली आपको ले ही लेना चाहिए कि एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो लेडीज़ हैं उनमें 99% जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और आलमोस्ट 90% जो है वो मेल्स में भी डेफिशिएंसी है। तो ये चीज़ें अगर वो
بچہ جو ہے جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی عمر میں بال سفید ہو رہے ہیں، اگر وہ شروع سے ہی کیئر کرنا شروع کر دے تو اس کے بال سفید نہیں. مطلب میرے بال اوور تھنکنگ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اوور تھنکنگ ایک فیکٹر ہے. دیکھیں اچھا. اوور تھنکنگ ایک فیکٹر ہے، جو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے وہ اصل کاز ہے. چلیں بہت شکریہ سر. پروفیسر ڈاکٹر ساجد قیوم ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان تمام تر سوالوں کے جواب آپ کو مل چکے ہوں گے جن کو پوچھنے سے آپ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ناظرین، یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال سے بھی ہمیں آگاہ کر دیجیے گا. اور اسی کے ساتھ سر ونس اگین تھینک یو سو مچ. اگر آپ آخر میں جاتے ہوئے نوجوانوں کو یا پھر ہمارے جو آڈینس ہے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہیلدی لائف سٹائل کے حوالے سے، پرسنل ہائیجین کے حوالے سے، تو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ ایک حدیث کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ رسول کریم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو کیا کہوں کہ تجھ سے کیا مانگے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بھئی مجھ سے ایمان مانگے اور دوسرے نمبر پہ مجھ سے صحت مانگے. تو یہ ہے کہ صحت کی امپورٹنس کو سمجھیں، اپنی پرائرٹی میں اس کو شامل کر لیں. اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں. ایگزیکٹلی اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور صحت کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ ہماری اسی طریقے سے ویڈیوز دیکھ سکیں اور ہم آپ تک اسی طریقے سے معلومات آپ کو فراہم کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اپنے میزبان جواد یوسف کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.